Crotyl alcohol, and we have its formula over here, is a colorless liquid which used as a solvent. Crotyl alcohol will react separately with bromine, get acidified potassium dichromate, concentrated potassium magnate, and PCl5 under suitable conditions. Which row is correct? Okay, if you see in crotyl alcohol, we have an alkene functional group as well as alcohol functional group, right? So with bromine, alkene react with dichromate, alcohol react with concentrated acidified magnate, both alkene and alcohol react, and will with PCl5 only alcohol react. Is this understandable? Yes. Yes. Okay. Now they are asking which row is correct. So reaction of a bromine, yes, that reaction occur at room temperature, but the bromine must be added where the double bond carbon were. So they are already, the double bond is already present and they have shown a bromine over here, which means A goes wrong. Now with acidified dichromate, we do heat under reflux, yes. And as a result, if we do heat under reflux, alcohol yes, is it clear? Now, when we do with concentrated acidified KMnO4, heat under reflux, alcohol will form carboxylic acid, but a double bond carbon will also react and the molecule must be broken from here. So that's why C also goes wrong, which means D is our correct answer. Is this clear to everyone? Yes. Okay. Now question number 35. सर आप दोबारा Yes. प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं? इसमें बी क्यों गलत है? बी इसलिए गलत है कि अगर हम इससे एसिडिफाइड डाइक्रोमेट से ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो ऑक्सीडेशन अल्कोहल की दो ऑक्सीडेशन पॉसिबल हैं। एक ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में एल्डिहाइड बनता है और दूसरी ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डिफरेंस सिर्फ कंडीशन का है। अगर हम हीट अंडर रिफ्लक्स कंडीशंस यूज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, एल्डिहाइड नहीं बनेगा। बट हम हीट एंड डिस्टिलेशन करेंगे, हीटिंग तो कर रहे हैं मगर कंटिन्यूअसली डिस्टिलेशन कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा बल्कि एल्डिहाइड मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने कंडीशन जो दी है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म करने की दी है और प्रोडक्ट में हमें एल्डिहाइड दिखाया है, इसीलिए बी रॉन्ग है। इज इट क्लियर? यस सर। और ए इसलिए गलत है क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो रिमूव नहीं हुआ ब्रोमीन की वजह से। जी हाँ, ब्रोमीन की वजह से डबल बॉन्ड रिमूव नहीं हुआ। जी। डबल बॉन्ड रिमूव होके वहां पे दोनों कार्बन पे ब्रोमीन लग जाने थे, ठीक है। यस सर, थैंक यू। Okay. Now question number 35. The skeletal formula of two organic compounds are shown. Okay. One is a tertiary alcohol, right? And this one is a ketone. Is it clear? Yes. Which reagent can be used to distinguish these two compounds? First one is alkaline iodine. So if we use alkaline iodine with that alcohol or ketone,
So that is a tertiary alcohol, and tertiary alcohol does not give or does not react with the alkaline iodine, and it's a methyl ketone which have a CH3 group, and to that CH3 group a carbonyl is present. So this ketone will undergo a reaction with alkaline iodine. Is this understandable? Yes. Yes. Now, acidified dichromate is an oxidizing agent. It will oxidize primary and secondary alcohol, but does not oxidize tertiary alcohol, and but neither it can oxidize ketone. So second is wrong and first one is correct. ये बात क्लियर है सबको? Yes. तो इट मींस अगर सेकंड रॉन्ग है तो ए भी रॉन्ग हो गया, सी भी रॉन्ग हो गया और डी भी रॉन्ग हो गया. तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, बी. सो बी इज करेक्ट. अगर हम बी में देखें तो उन्होंने 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन यूज किया है जो कि अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करता बल्कि मगर कीटोन से रिएक्ट करता है. तो फर्स्ट और थर्ड से हम जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इन दोनों कंपाउंड्स को. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें. No, sir. सर आयोडीन अल्कलाइन आयोडीन नहीं रिएक्ट करती अल्कोहल के साथ क्योंकि वो टर्टरी है ना. जी, इस अल्कोहल के साथ नहीं करती. अगर प्राइमरी अल्कोहल में इथेनॉल अगर हो और प्राइमरी कोई होती तो उसके साथ करती क्योंकि उसके पास हाँ मगर हर प्राइमरी नहीं. ओके. देखें, अल्कोहल्स जो के एक्वस अल्कलाइन आयोडीन से रिएक्ट करते हैं उन अल्कोहल के स्ट्रक्चर में ये वाला स्ट्रक्चर मस्ट है, और इस कार्बन का जो फोर्थ बॉन्ड है उधर हाइड्रोजन भी हो सकता है और अल्काइल चेन भी हो सकती है. बट अगर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये जो मैंने लेफ्ट पे बनाया हुआ है ये स्ट्रक्चर, तो फिर वो एक्वस अल्कलाइन आयोडीन से रिएक्ट करेगा. ठीक है, ये बात क्लियर है? जी सर क्लियर है. जी, बाकी सबको भी क्लियर है? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें. जी, सबको क्लियर है? Yes. Yes. Okay. Now question number 36. A carbonyl compound X. So they said carbonyl compound X, so it means it can be aldehyde and ketone both, या उन दोनों में से कोई एक हो सकता है. Reacts with HCN in the presence of NaCN to make a compound with the MR85. Compound X does not reacts with Fehling solution. तो इसका मतलब है ये हुआ कि जो कंपाउंड X है वो क्या है, कीटोन है और वो एल्डिहाइड नहीं है. ये बात क्लियर है सबको? Yes. Yes. तो इट मींस मैं A और C को रॉन्ग कर दूंगा क्योंकि वो दोनों एल्डिहाइड्स हैं. ये भी क्लियर है सबको? Yes. Yes. अच्छा जी. अब अगर ब्यूटानॉन की बात करें तो ब्यूटानॉन का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और जब वो HCN के साथ रिएक्ट करेगा NaCN की प्रेजेंस में तो क्या बनाएगा, CH3 C CH2 CH3 OH CN, राइट? जी, ये भी क्लियर है? Yes. अच्छा, अब इधर हम देखें तो 5 कार्बन है, हाइड्रोजन्स कितने हैं? 9. एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, सो 12
times 5 is 60. 60 plus 9 plus 14 plus 16. So 30, 90, 99. 1 minute. तो हमें एमआर क्या मिल रहा है? 99 मिल रहा है इस कंपाउंड का एमआर, जो कि गिवन एमआर से ज्यादा है। तो इसका मतलब है बी भी रॉन्ग हो गया। तो इट मींस वी आर लेफ्ट विद ओनली डी ऑप्शन, प्रोपानॉन, अ कार्बन विद अ कीटोन विद 3 कार्बन्स। सो इस स्ट्रक्चर में क्या होगा? यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ। और अगर आप इसका एमआर कैलकुलेट कर लें तो इसका एमआर 85 ही आएगा। कितने कार्बन्स हैं? 4 कार्बन्स हैं। सो 12 times 4 gives me 48 प्लस 7 हाइड्रोजन हैं, 1 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन है, ऐड कर लें आपको 85 ही मिलेगा। जी क्लियर है सबको? Yes. Yes. ओके क्वेश्चन नंबर 37। Which compound produces butane 2-ol and ethanoic acid on hydrolysis? So it means that compound must be an ester। और अगर हम देखें तो हमें सब में कार्बन चेन के बीच में CO2 नजर आ रहा है, which means all are ester। अच्छा, अब जो CO2 के बाद वाली कार्बन चेन है, वो कार्बन चेन क्या प्रोड्यूस करेगी? ब्यूटेन 2-ol प्रोड्यूस करेगी, यानी कि उस कार्बन चेन में हमारे पास 4 कार्बन होने चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट में देखें तो फर्स्ट में टोटल इधर 3 कार्बन हैं, तो इसलिए ए रॉन्ग, इट मींस प्रोपेन 2-ol बनेगा। ठीक है, अगर हम बी में देखें तो बी में 4 कार्बन है, तो ये पॉसिबल हो सकता है, बट ए रॉन्ग हो गया। ये बात क्लियर है सबको? Yes. सी में अगर देखें तो 2 कार्बन है, तो इसका मतलब है ये भी रॉन्ग हो गया। और डी में देखें तो डी में भी हमारे पास 4 कार्बन है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। और उन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड जो बताया वो क्या बनेगा? इथानोइक एसिड। अगर हम यहाँ पे देखें तो O2 के लेफ्ट साइड पे 3 कार्बन है, यानी कि ये प्रोपानोइक एसिड बनाएगा, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। और अगर यहाँ पे देखें तो ये 2 कार्बन है, तो ये इथानोइक एसिड बनाएगा। सो बी इज अवर करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes. अगर किसी को कोई क्लियर, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें प्लीज। क्लियर है सबको? Yes. सर सी क्यों गलत है? उसकी राइट साइड बना सकती है ना इथेनोइक एसिड। बेटा राइट साइड पे जो पार्ट है वो अल्कोहल बनाएगा, वो अल्कोहल में चेंज होगा ना। सर वो क्योंकि कैसे पता चलता है? देखें बेसिकली ईस्टर ये होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी शायद एक क्लास में डिस्कस किया था कि इस साइड पे कार्बन होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। और इस साइड पे कार्बन भी हो सकता है या फिर हाइड्रोजन भी हो सकता है। ये बात क्लियर है? यस सर। ओके, अब ये मॉलिक्यूल हमेशा यहाँ से ब्रेक होता है। यस सर। तो देखें सी डबल बॉन्ड हो किस साइड पे आ रहा है? लेफ्ट साइड पे आ रहा है। यस तो सर। ये वाला जो मॉलिक्यूल का पार्ट होगा, ये मॉलिक्यूल का पार्ट क्या फॉर्म करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करेगा। और जो ये वाला पार्ट होगा मॉलिक्यूल का, ये क्या फॉर्म करेगा? अल्कोहल फॉर्म करेगा। यस सर। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये CO2 के बाद CH2 CH3 है। तो अगर आप देखें ये 2 कार्बन है, तो इन दोनों में से किसी भी कार्बन पे C डबल बॉन्ड O नहीं है ना।
नो सर। तो फिर ये इथेनोइक एसिड कैसे बनाएगा? ओके क्योंकि सर। हाइड्रोलाइज हो रहा है, हाइड्रोलाइज होने का मतलब है कि ब्रेकिंग हो रही है। फिर पेंटेनोइक एसिड बनाएगा। सॉरी, प्रोपेनोइक। 4 है, ब्यूटानोइक एसिड बनाएगा। सी। हाँ, बी की बात की जाए, आप सी की बात कर रही है ना आप? यस सर। हाँ, तो सी जो है 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, क्योंकि ये देखें ना, इस कार्बन के साथ कलेक्टिवली हमारे पास 4 कार्बन एटम्स हैं, राइट? यस सर। क्लियर है? यस सर। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। जी, सबको क्लियर है? Yes. Okay. Now question number 38. Two 1 gram samples of Y are reacted separately and completely with sodium and with sodium carbonate. The volumes of gases produced are collected and measured. Okay. They have given you the relative volumes of gases. अच्छा, हमें पता है यहाँ पे कौन सी गैस फॉर्म हुई है। जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करवाया है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई होगी, और यहाँ पे कौन सी गैस फॉर्म हुई है? हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई होगी। ये बात क्लियर है सबको? Yes. इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। जी, क्लियर है सबको? अब वो क्या कह रहे हैं कि वाई आइडेंटिफाई करें। अच्छा, अब अगर हम देखें तो मेटल कार्बोनेट के साथ, सोडियम के साथ, इसके साथ कौन रिएक्ट कर सकता है? सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर सकता है, और इसके साथ अल्कोहल भी रिएक्ट कर सकता है सोडियम मेटल के साथ, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर सकता है। ये बात क्लियर है सबको? Yes. तो इसका मतलब है जो आपका कंपाउंड वाई है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों हैं, या सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड है? सिर्फ अल्कोहल नहीं हो सकता। अगर सिर्फ अल्कोहल होता तो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन ही नहीं होता और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बनती। ये बात क्लियर? Yes. तो इट मींस मैं सी को और ए को रॉन्ग कर दूंगा, क्योंकि सी और ए में सिर्फ अल्कोहल्स हैं। ये बात क्लियर है सबको? Yes. Yes. ओके। अब सर हमारे पास आपको बचा, कैसे पता है कि ये अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है? ये कोई रूल है इसका? भाई देखें, ये तो हमारे रिएक्शंस है ना। अगर हम रिएक्शंस में बात करें तो सोडियम, क्योंकि देखें सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हुए, राइट? यस सर। तो अगर हम सोडियम मेटल की बात करें तो सोडियम मेटल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है और अल्कोहल से रिएक्ट करता है, इन दोनों से रिएक्ट करता है। और अगर हम मेटल कार्बोनेट्स की बात करें तो मेटल कार्बोनेट सिर्फ एसिड से रिएक्ट करते हैं, अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करते। ये तो इनकी रिएक्शंस में हम पढ़ते हैं ना। अगर आप देखें तो आपने अल्कोहल का सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन देखा, मगर अल्कोहल का सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं देखा। ये बात क्लियर है? ठीक। अच्छा, ओके। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं,
बी और डी। अब अगर मैं बी और डी को कंपेयर करूं तो हमारे पास सोडियम के साथ उन्होंने बताया कि जो वॉल्यूम मिल रहा है वो डबल वॉल्यूम है गैस का एज कंपेयर टू द वॉल्यूम दैट वी आर गेटिंग विद सोडियम कार्बोनेट। ये बात भी क्लियर है सबको? जी। यस। तो अगर मैं इसको सोडियम मेटल से रिएक्ट कराता हूं तो क्या होगा, पूरे कंपाउंड में से सिर्फ ये वाला H डिस्प्लेस होगा और यहाँ पे Na लग जाएगा और वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और मैं बैलेंस करूंगा तो यहाँ पे मैं हाफ मोल प्लेस करूंगा। ये बात क्लियर है सबको? यस। Yes. अच्छा, अब अगर मैं इसको सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करवाता हूं तो अगेन वही होगा, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कराऊंगा तो एक सोडियम यहाँ पे आ जाएगा, प्लस वाटर बनेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अगर मैं इक्वेशन बैलेंस करूं तो मुझे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 प्लेस करना पड़ेगा। अगर मैं 2 के अकॉर्डिंगली ऊपर वाली इक्वेशन को भी बैलेंस करता हूँ 2 मोल्स रखते हुए भी, तो मुझे यहाँ और यहाँ 2 लगाने पड़ेंगे और हाइड्रोजन का 1 मोल रहेगा। तो ये दोनों एक बैलेंसिंग क्लियर है सबको? यस। ओके, तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल मिला है और हाइड्रोजन का भी 1 मोल मिला है, विच मींस दोनों का रिलेटिव वॉल्यूम इक्वल होगा। तो डी आपका रॉन्ग हो गया और बी ऑप्शन आपका इसका मतलब है करेक्ट है। ये बात क्लियर है? यस। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो डी। सर तो बेसिकली ये देखना है कि जो गैसेस फॉर्म हो रही है उनके कितने मोल हैं। हाँ, क्योंकि मोल और तो वॉल्यूम रेशियो सेम होता है। अगर मोल्स इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब है उन गैसेस के वॉल्यूम भी इक्वल होंगे। ओके सर। अच्छा, अब अगर हम अपने बी को कंफर्म करना है तो अगर मैं बी को सोडियम से रिएक्ट कराऊंगा तो देखें हमारे पास यहाँ पे 2 मोल सोडियम के प्रोड्यूस होंगे, ओ सॉरी 2 मोल सोडियम के यूज होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अल्कोहल भी है और अल्कोहल वाला OH ONA बन जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला H हट के उधर भी Na बन जाएगा और हमें 1 मोल हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ये क्लियर है सबको? यस। अच्छा, अब अगर मैं इसको सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करवाऊंगा तो सोडियम कार्बोनेट सिर्फ किससे रिएक्ट करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करेगा, तो ये जो अल्कोहल वाला OH है ये एज इट इज रहेगा और सिर्फ यहाँ पे Na आएगा और साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनेगा। ये बात क्लियर है? अब अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूं तो मुझे यहाँ पे एक Na है, राइट? तो मुझे इसको हाफ करना पड़ेगा और इसको हाफ करने की वजह से यहाँ इसे भी हाफ करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से देखें दोनों के वॉल्यूम रेशो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हाफ मोल्स प्रोड्यूस हो रहा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, जिसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म हो रही है उसका वॉल्यूम हाफ होगा। ये बात क्लियर है सबको? यस। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। सर ये कुछ एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स नहीं है एमसीक्यू? हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स MCQ है, मगर इसमें आप इक्वेशंस मैंने आपको समझाने के लिए बनाई हैं, वरना हमें देखें यहाँ से इस इक्वेशन को बनाए बिना भी हम प्रिडिक्ट कर सकते थे कि जब हम Na से रिएक्ट करा रहे हैं तो Na इन 2 जगहों से हाइड्रोजन हटाएगा। जब हम सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करा रहे हैं तो सोडियम कार्बोनेट सिर्फ यहाँ से हाइड्रोजन हटा के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है ना? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा
वो बी ही होगा। स्टिल किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें, या क्लियर है सबको? सर मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। कौन सा वाला पार्ट समझ में नहीं आया सर आपको? ये AC वॉल्यूम्स क्यों गिवन है पहली बात, उसके बाद फिर Na के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो वो अल्कोहल को डिस्प्लेस नहीं करता, राइट? और नहीं, सोडियम Na कार्ब दोनों को करता है। Na अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों को करता है। सोडियम कार्बोनेट सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है। ओके सर। ठीक है, तो देखें सर ये कि- कहाँ पे मेंशन है, ये कौन सा वाली जगह पे आती है ये वाले रिएक्शंस? आप लोगों के साथ मैंने फाइल आई थिंक शेयर की नहीं सर है। वो तो है, लेकिन ये वैसे चैप्टर्स में कहाँ पे आते हैं? देखिए, चैप्टर्स में सिर्फ रिएक्शंस दिए हैं हमें, ठीक है ना? चैप्टर्स में सिर्फ रिएक्शंस दिए हैं, तो आप जब अल्कोहल के रिएक्शन को स्टडी करेंगी तो वहां पे आपको अल्कोहल का सोडियम कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, बट ओके सोडियम सर। के साथ मिलेगा। तो अगर आप इसको भी एक दफा गो थ्रू कर लें तो ये देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अल्कोहल्स ओपन करूं तो देखें अल्कोहल का सोडियम के साथ ये रिएक्शन आपको शो हो रहा है यहाँ पे, राइट? यस सर। बट अल्कोहल का सोडियम कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है? ओके सर। और कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है, तो जितने भी एसिड्स हैं वो सारे जो है मेटल्स, और सारे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली एसिड है तो वो जो है सबसे रिएक्ट करेगा जिनसे एक नॉर्मल एसिड रिएक्ट करता है, यानी कि मेटल से, मेटल ऑक्साइड से, मेटल हाइड्रोक्साइड से, मेटल कार्बोनेट से। ओके सर। ठीक है, क्लियर है अब? यस सर। Okay. Question number 39. The diagram shows a section of an addition polymer formed from two different monomers. Okay. ये दो different monomers से form हो रहा है. One of the monomer is propene. तो प्रोपीन का मतलब ये हुआ कि एक मोनोमर हमारा ये है। ये बात क्लियर है सबको? नहीं, सॉरी, प्रोपीन का मतलब ये हुआ कि एक मोनोमर हमारा ये है। ये बात क्लियर? यस। व्हाट इज द अदर मोनोमर? और आपने दूसरा मोनोमर आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, अब अगर देखें दो प्रोपीन्स हैं, इसको ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ये रहा एक प्रोपीन, और लेट सपोज ये रहा दूसरा प्रोपीन। तो जब पॉलीमराइजेशन होगी तो पॉलीमराइजेशन में क्या होगा कि ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड दोनों प्रोपीन्स के हट जाएंगे, और ये यूं आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, फिर ये इसी तरह अपने नेक्स्ट मॉलिक्यूल से बनाएगा, और ये इसी तरह अपने नेक्स्ट मॉलिक्यूल से बनाएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? जी, ये बात क्लियर है या नहीं? नहीं सर। अच्छा जी, एक मिनट। देखें, जब भी पॉलीमराइजेशन होती है तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, मैं प्रोपीन को इस तरह लिख सकता हूं? पहले तो मुझे ये बताएं। यस। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रोपीन पॉलीमराइजेशन करेगा तो ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, और ये अपने राइट साइड के मॉलिक्यूल से कनेक्ट होगा और अपने लेफ्ट साइड के मॉलिक्यूल से कनेक्ट होगा, राइट? यस। तो इसका मतलब है कि जब प्रोपीन पॉलीमराइजेशन में टेक पार्ट करेगा तो उसका एक कार्बन जो है ब्रांच की फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर तो राइट और लेफ्ट पे इन बॉन्ड से कंटिन्यू हो रहा है ना। यस।
ये बात सबको क्लियर है? अगर किसी को Yes. इसमें कोई डाउट है तो पूछ लें। तो इट मींस मैं ये कह सकता हूं कि ऊपर वाले मॉलिक्यूल में जो उन्होंने मुझे बताया कि एक मोनोमर प्रोपीन है, तो वो मोनोमर प्रोपीन ये रहा। यानी कि ये वो CH3 वाला कार्बन है, ये CH वाला कार्बन है और ये CH2 वाला कार्बन है, जिनके बिटवीन यहाँ पे डबल बॉन्ड था और पॉलीमर में आने के बाद वो डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया और उसके रिजल्ट में इसने अपने आप को यहाँ पे एक मॉलिक्यूल से बॉन्ड किया और यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्ड किया। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस। जी, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। एक्चुअली प्रोपीन ये था। मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रोपीन को पर्पल से शो करता हूँ। ये प्रोपीन था और यहाँ पे डबल बॉन्ड था। जो डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इसने यहाँ पे जो इसने बॉन्ड बनाए पॉलीमर में, वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। एक बॉन्ड यहाँ पे बनाया, इस मोनोमर से कनेक्ट हुआ और एक बॉन्ड यहाँ पे बनाया। ये बात सबको समझ में आ गई या अभी भी कंफ्यूजन है? यस। अच्छा, अब अगर हम देखें तो एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर की रिपीटिशन हमें इस जगह मिल रही है। यस। ठीक है, ये बात भी क्लियर है सबको? Yes. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा मोनोमर है वो बेसिकली ये वाला रीजन है। जो ये रीजन है या जो ये वाला पार्ट है, ये बेसिकली दूसरे मोनोमर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात क्लियर है सबको? सर जो इस वाले में CH3 ग्रुप है, वो उसके बाद वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो प्रीवियस एल्केन का पार्ट। मैं आपकी बात नहीं समझा। जो आपने बॉक्स ड्रॉ किया, जो पे CH3 है, वो उसके बाद वाला नहीं होना चाहिए, वो क्यों इंक्लूडेड है? क्योंकि देखें हमारे पास स्ट्रक्चर यहाँ से रिपीटिशन स्टार्ट हो रही है ना, इस जगह से, इस पर्पल वाली जगह से। यस। अच्छा चलें, और एक मिनट एक काम करते हैं। अब जरा अगर आप पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो पूरे स्ट्रक्चर में रिपीटिशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? इस पॉइंट से। यस। ठीक है, उन्होंने हमें बता दिया कि दो मोनोमर्स में से एक मोनोमर क्या है? प्रोपीन है। ठीक है, ये बात क्लियर है? यस। और प्रोपीन हमने आइडेंटिफाई किया कि प्रोपीन ये वाला रीजन है, राइट? यस। तो इसका मतलब है कि रिपीटिशन से पहले जितना भी स्ट्रक्चर बचा है वो सारा किसको रिप्रेजेंट करेगा? दूसरे मोनोमर को रिप्रेजेंट करेगा, यस। जिसको मैंने भी पर्पल से ड्रॉ किया है। जी, ये बात क्लियर है सबको? Yes. अच्छा, तो जो चीज मैंने पर्पल से ड्रॉ की है, अगर मैं उसको देखूं तो वो सेपरेट होने के बाद ये बन जाएगा। अभी मैंने डबल बॉन्ड्स नहीं लगाए। ये बात क्लियर है? यस। Yes. अच्छा, अब अगर देखें कि ये रीजन है तो इसका मतलब है ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन वो कार्बन्स हैं जो कि एक्चुअली दूसरे मोनोमर से बॉन्ड हो रहे हैं। यानी कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस। Yes. तो अगर जब ये वापस मोनोमर में कन्वर्ट होंगे तो मोनोमर में कन्वर्ट होने पे इन्हीं दोनों कार्बन्स पे क्या होगा? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ये बात भी क्लियर है? यस। क्योंकि जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं वही बेसिकली सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो इसका मतलब है एक डबल बॉन्ड यहाँ होगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ होगा मोनोमर में, जो दूसरा मोनोमर है। तो इसकी बेसिस पे मैं सबसे पहले किसको रॉन्ग करूंगा, बी को, क्योंकि बी में तो एक ही डबल बॉन्ड है। अच्छा, दूसरा आ जाए, ये जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है, इस स्ट्रक्चर में क्या कोई ब्रांच है? नो। नहीं है। तो ए में भी ब्रांच है और सी में भी ब्रांच है, तो ए और सी भी रॉन्ग हो गए। तो बचा हमारे पास ए की डी। अब डी कैसे करेक्ट है? अगर आप इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम्स हैं जिनमें से डबल बॉन्ड 2 और 3 और 4 और 5 के बिटवीन है। तो अगर आप इसको भी नंबर असाइन करें, सो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी 6 कार्बन एटम्स हैं, दोनों में 6 कार्बन एटम्स लीनियर चेन में है, नॉन ब्रांच चेन में है, और डबल बॉन्ड 2 और 3 कार्बन और 4th और 5th कार्बन के बिटवीन फॉर्म हो रहा है। ये बात क्लियर है सबको? यस। यस। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 40. A scientist chooses either infrared spectroscopy or mass spectrometry to find a particular piece of information in which raw the best choice has been in which raw has the best choice made. अच्छा, फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज कर सकते हैं। जी यस। यस, ये स्टेटमेंट सही है, बट जब भी आपको पहली स्टेटमेंट सही लग रही हो, आप बाकी सबको अश्योर करें कि रॉन्ग है। आइडेंटिफाई आइडेंटिटीज ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री, नहीं, कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि मास स्पेक्ट्रोमेट्री हमें सिर्फ जो रेडिकल फॉर्म होता है या जो कंपाउंड होता है उसका मास हमें बताता है, उसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये नहीं पता चलता। ये बात क्लियर है? यस। यस। वैल्यूज ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ सोडियम, वैल्यूज तो आयनाइजेशन एनर्जी की कभी भी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से नहीं पता चलती, और वैल्यूज ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम मास स्पेक्ट्रोमेट्री से भी नहीं पता चलती, क्योंकि देखें इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का हमें पता है क्या मास होता है जी। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? सर 1000 मतलब नेग्लिजिबल होता है ना। यस। तो अगर सोडियम एटम है, या सोडियम +1 आयन है, या सोडियम 3+ आयन है, या सोडियम 11+ आयन है, जिसमें से पूरे 11 के 11 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं, क्या मास में कोई फर्क आएगा? नो। इसका मास भी 23 होगा, इसका भी 23 होगा, इसका भी 23 होगा, और इसका भी 23 होगा, राइट? तो इसलिए सी भी रॉन्ग हो गया और डी भी रॉन्ग हो गया। सो अवर ए ऑप्शन इज करेक्ट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। जी, सबको क्लियर है? यस। यस। ओके, तो अब इसके बाद हम जो है कौन सा पेपर स्टार्ट करेंगे? मई जून 2022 का पेपर 1-3। ओके, अच्छा, वो मैंने आप लोगों के साथ YouTube का लिंक शेयर किया था, वहां पे स्पेसिमेन पेपर और कुछ प्रीवियस पेपर्स की रिकॉर्डिंग्स हैं, वो आप लोगों ने गो थ्रू की हैं अभी तक या नहीं की? सर सर मैं आप 2020 जी, फिर से सेंड कर दें। मैं ग्रुप पे दोबारा शेयर कर देता हूँ लिंक, ठीक है? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, पेपर 1-3, मई जून 2022, which
Which atom has exactly 3 unpaired electrons in its ground state? An isolated aluminium atom, carbon atom, chromium atom, phosphorus atom. कोई मुझे आंसर दे सकता है इसका? phosphorus. Phosphorus, very good. D is the correct answer. अब देखें क्यों. एल्यूमिनियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो लास्ट में एंड होती है 3s2 3p1, जिसका मतलब क्या हुआ कि 3s में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 3p में हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो उन्होंने 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का पूछा है. यही चीज अगर हम कार्बन के लिए करें तो कार्बन एंड होता है 2s2 और 2p2 पे, तो 2s में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2p में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. अगर क्रोमियम देखें तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, वो एंड होता है 4s1 3d5 पे, तो 4s में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 3d5 में आपके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास भी 3 नहीं है, 3 से ज्यादा है, तो इसीलिए A, B और C तीनों रॉन्ग हो गए. और अगर आप फॉस्फोरस देखेंगे तो 31 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये एंड होता है 3s2 3p3 पे, तो जिसका मतलब ये हुआ 3s में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया मगर 3p में तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसीलिए ये करेक्ट है. क्लियर है सबको? यस. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. Which element has the second smallest atomic radius in its group and second highest electrical conductivity in its period? तो इसके लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए? Periodic table की. Which has the second smallest atomic radius in its group. Radius का किस में पूछा जा रहा है? ग्रुप में. और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का किस में पूछा जा रहा है? पीरियड में. ये बात क्लियर है? Yes. तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है. पहला ऑप्शन ने हमें क्या दिया है? बोरॉन. अगर हम बोरॉन को देखें तो बोरॉन की पोजीशन ये रही, आपको नजर आ रही है, ग्रुप 13 का पहला एलिमेंट है और अपने पीरियड का थर्ड एलिमेंट है. तो क्या इसका एटॉमिक रेडियस सेकंड स्मॉलेस्ट होगा? अगर हम इन द ग्रुप बात करें तो ग्रुप में इसका रेडियस क्या होगा? सबसे ज्यादा छोटा होगा क्योंकि इसके ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है, राइट? Yes. तो इट मींस बोरॉन रॉन्ग हो गया. अब हमारे पास क्या बचे हैं? कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम, और हमें सेकंड स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस चाहिए. तो अगर हम देखें कैल्शियम की पोजीशन अपने ग्रुप में थर्ड है और सोडियम की, तो कैल्शियम की पोजीशन अगर अपने ग्रुप में थर्ड है तो इसका भी सेकंड हाईएस्ट नहीं हो, सेकंड स्मॉलेस्ट नहीं होगा, इसका थर्ड स्मॉलेस्ट होगा, तो इसलिए कैल्शियम भी रॉन्ग हो गया. ये बात क्लियर है? Yes. अच्छा, सोडियम और मैग्नीशियम. तो सोडियम और मैग्नीशियम अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों अपने अपने ग्रुप्स में सेकंड एलिमेंट हैं, व्हिच मींस दोनों का एटॉमिक रेडियस सेकंड स्मॉलेस्ट होगा अपने ग्रुप में. तो ये स्टेटमेंट तो दोनों पे फिट आ रही है कि दोनों का एटॉमिक रेडियस सेकंड स्मॉलेस्ट है अपने ग्रुप में. ये बात क्लियर है? यस. Yes. ओके. दोनों का पीरियड सेम है जी. Yes. यस. तो सोडियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मैग्नीशियम से कम होती है या ज्यादा होती है? कम होती है. और मैग्नीशियम से किसकी ज्यादा होती है? एल्यूमिनियम की ज्यादा होती है, राइट? Yes.
और एल्यूमिनियम से ज्यादा किसी की भी नहीं होती इन द पीरियड, अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि आगे सिलिकॉन है जो कि मेटलॉइड है, ठीक है ना। तो इट मींस मैग्नीशियम का एटॉमिक रेडियस सेकंड स्मॉलेस्ट है अपने ग्रुप में, और अपने पीरियड में उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेकंड हाईएस्ट है। सो डी ऑप्शन विल बी रॉन्ग and C is our correct answer. Is this clear to everyone? Yes. Yes. Okay. Now, question number 3. Analysis of hormone thyroxine gives the result shown. Heating 0.500 grams of thyroxine with aqueous silver nitrate produces 0.64 gram of silver iodide. All the iodine in the thyroxine sample is converted into silver iodide. यानी कि सिल्वर आयोडाइड में जितना भी आयोडीन आया है वो सारा कहां से आया है? थायरोक्सिन से आया है। ये बात क्लियर है सबको? Yes. अब वो क्या कह रहे हैं? Complete combustion of 0.5 gram of thyroxine produces 232 centimeter cube of carbon dioxide and 7.72 centimeter cube of nitrogen measured under room conditions. ये भी क्लियर है सबको? Yes. Okay. Now they are asking, what is the molecular formula of thyroxine agrees with these values? Okay. अच्छा, आप एक काम करें, कार्बन और नाइट्रोजन का तो सबसे पहले वॉल्यूम का रेशियो लें। तो अगर मैं ये रेशियो लूं तो बताएं मुझे इसकी क्या वैल्यू आ रही है। ये कार्बन हो गया और ये नाइट्रोजन हो गया। तो नाइट्रोजन तो 1 हो जाएगा, कार्बन की क्या वैल्यू आ रही है? $31.9. 31.9। अच्छा, एक काम और करते हैं, इसको छोड़ें, ये इस तरह शायद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अच्छा जी, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन का रेशियो लूं तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? 24. 24 डेसीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब में कितना ऑक्यूपाई करेगी? 24,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात क्लियर है? Yes. और वो 24,000 सेंटीमीटर क्यूब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें जो कार्बन है उसका मास कितना होगा? जी, 24,000 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है हमारे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, Yes. और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितने? 1. 1, और उस 1 मोल कार्बन का मास क्या होगा? 12. 12 ग्राम। ये रेशियो क्लियर है सबको? Yes. अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। तो अगर 232 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें कार्बन का मास कितना होना चाहिए? अगर ये न्यूमेरिकल तो इस तरह बहुत लेंथी हो जाएगा। जी जरा वैसे वैल्यू निकालें। 0.1. 0.1 ग्राम। ये बात क्लियर है सबको?
तो ये मुझे पता चल गया कि उस थायरॉक्सिन में कार्बन कितना प्रेजेंट था, 0.1 ग्राम कार्बन प्रेजेंट था। ये बात क्लियर है? अगर किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। नो। ओके अब अगर मैं नाइट्रोजन का वॉल्यूम लूं, नाइट्रोजन डायटोमिक होती है, और नाइट्रोजन के मास का रेशो लूं नाइट्रोजन एटम्स के, तो नाइट्रोजन का 1 मोल भी 24,000 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्युपाई करता है, और उसमें कितने नाइट्रोजन होंगे? 2 मोल्स नाइट्रोजन होंगे, जिसका मतलब है कि 28 ग्राम्स नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। ये बात क्लियर है सबको? यस। तो अगर 7.72 ग्राम्स नाइट्रोजन है, इसका वॉल्यूम है, तो उसमें नाइट्रोजन के एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे और मास कितना प्रेजेंट होगा, जरा कैलकुलेट करें। 9.01 exponent minus 3. 9.01 एक्सपोनेंट माइनस 3 ग्राम्स। ये पार्ट अगर किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। ये मेरे पास नाइट्रोजन एटम्स का मास आ गया जी। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए प्लीज। क्लियर है सबको? यस। यस। अच्छा अब आ जाइए सिल्वर आयोडाइड पे। सिल्वर का मास कितना है? 107.9 है। और आयोडीन का मास कितना है? 126.9। 107.9 एंड 126.9। सिल्वर आयोडाइड जो फॉर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है AgI। तो इस AgI में कितने आयोडीन है? 1 ही आयोडीन है। तो AgI का 1 मोल का मास क्या होगा? 107.9 प्लस 126.9, और इसमें आयोडीन कितना है? 126.9 है। ये बात क्लियर है सबको? यस। तो अगर हमारे पास 0.604 मास है तो कितना आयोडीन बनना चाहिए? एक्स, जरा वैल्यू निकाल लें। क्या आ रही है? Zero point three. 0.33. 0.33 ग्राम्स आयोडीन के। ये पार्ट भी सबको क्लियर है? यस। तो हमें कार्बन, नाइट्रोजन और आयोडीन के मासेस पता चल गए थायरॉक्सिन में। कार्बन का मास 0.1 है, नाइट्रोजन का मास 9.01 एक्सपोनेंट माइनस 3 है, और आयोडीन का मास 0.33 है। अब अगर मैं इनके मोल्स निकाल लूं तो मैं इसे डिवाइड बाय 12 करूंगा, इसे डिवाइड बाय 14 करूंगा, और इसे डिवाइड बाय 126.9 करूंगा। जरा वैल्यूज बताइए क्या आ रही हैं? कार्बन का 8.3 exponent minus 3. 8.3 एक्सपोनेंट माइनस 3, 6.4 exponent minus 4. 6.4 एक्सपोनेंट माइनस 4, 2.6 exponent minus 3. 2.6 एक्सपोनेंट माइनस 3। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू नाइट्रोजन की है, तो नाइट्रोजन की वैल्यू से मैं सबको डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, तो नाइट्रोजन तो 1 आएगा। जरा कार्बन बताइए कितने आ रहे हैं? 3. कार्बन कितने आ रहे हैं बेटा? 3.
8.3 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 6.4 एक्सपोनेंट -4, 3 आ रहे हैं, आप श्योर हैं? सर 13। 13 आ रहे हैं। अच्छा, अगर कार्बन की वैल्यू 13 आ रही है, विच मीन्स कि आपका सी और डी तो रॉन्ग हो गया। अच्छा, नाइट्रोजन की वैल्यू निकालें। नाइट्रोजन की तो 1 आ रही है। अब आयोडीन की वैल्यू निकालिए, क्या आ रही है? फोर। 4। और आयोडीन 4 हमारे पास इसमें है, तो आपका बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। इट मीन्स योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये बात क्लियर है? लेकिन सर कार्बन तो 13 आए थे। देखें, एक मिनट रुकें। हमारे पास पहले जो हमने कार्बन का मास निकाला था, वो मुझे आप लोगों ने क्या बताया था? 0.1। 0.1। तो वो कैसे मिला था कि हमने 232 मल्टीप्लाई बाय 12 किया था और डिवाइडेड बाय 24,000 किया था, राइट? यस। तो वो अभी मैंने कैलकुलेट किया है, तो वो मेरा आ रहा है मास 0.116। और अगर मैं 0.116 को डिवाइड करूं 12 से, तो मेरे पास यहाँ पे 0.1 वैल्यू नहीं आ रही, यहाँ पे क्या आ रही है? 0.009667। तो मैं इसे 97 ले लेता हूँ। और अगर मैं उस वैल्यू को 12 से डिवाइड करूं, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.0000805556। और अगर मैं उसको डिवाइड करूं 6.46, मेरे पास साइंटिफिक। अच्छा देखें, कार्बन के आपने बताया क्या वैल्यू आई है? 13 आई है। तो देखें, हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि कभी कभार हम एक्चुअल फिगर्स नहीं लेते, तो जिसकी वजह से वैल्यू थोड़ी सी वेरी कर जाती है। तो हमें यहाँ पे 2 में कार्बन 15 दिख रहा है और कार्बन 30 दिख रहा है। तो इसी बेसिस पे मैंने सी और डी को रॉन्ग कर दिया, क्योंकि आपके पास इसका मतलब है कि अगर 13 वैल्यू आई है तो वो मोस्ट प्रोबेबली कार्बन 15 ही होगा। अगर आप प्रॉपर वैल्यूज जो कैलकुलेटर में आ रही हैं उसको लेके कंटिन्यूअसली यूज करेंगे, तो आपको आंसर सही मिलेगा, जो कि C15 आएगा, जब आप सबकी सारी वैल्यूज एक्चुअल वैल्यूज को यूज करेंगे। ठीक है सर। किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन O2 आर नीडेड टू बर्न 1 मोल ऑफ ईथेन इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन आर वाटर एंड कार्बन ओनली। अब देखें, ईथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन बता रहा है जी? एथमीन C2H6। और इसके कितने मोल बर्न करने हैं? एक ही मोल बर्न करना है। और कंबस्शन में हमें क्या मिल रहा है? उन्होंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा, बल्कि कार्बन और वाटर मिल रहे हैं। ये बात क्लियर है सबको? यस। तो अगर इक्वेशन बैलेंस करूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। और अगर 3 आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन कितने हुए? 3 हुए। और 3 ऑक्सीजन के लिए मुझे यहाँ पे 3/2 प्लेस करना पड़ेगा। और 3/2 किसके इक्वल होता है? 1.5 के। So it means A is my correct answer. Is this clear to everyone? यस। यस। Okay. Now, which compound has the smallest difference in electronegativity between its two elements? इसका कोई मुझे आंसर दे सकता है? ये रहा ग्रुप 1 और ये रहा ग्रुप 17।
ठीक है, ग्रुप 1 में हमारे पास लिथियम है, उसके बाद सोडियम है और उसके बाद पोटेशियम है। लिथियम वाले सेम पीरियड में ही फ्लोरीन होता है, उसके नीचे क्लोरीन होता है और उसके नीचे ब्रोमीन होता है। तो अब इनकी पोजीशंस को देखते हुए आप मुझे बताएं कि किन दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे कम होगा, कोई बता सकता है? KBr D. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मैं आपको ट्रेंड भी बता देता हूं, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases across the period. ठीक है, जब हम नीचे मूव होते हैं ग्रुप में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, और जब हम पीरियड में मूव होते हैं लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों एलिमेंट्स में से, ग्रुप 17 के तीनों एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? फ्लोरीन फ्लोरीन की होगी। और सबसे कम किसकी होगी? ब्रोमीन ब्रोमीन की होगी। इन तीनों में से ग्रुप 1 में सबसे ज्यादा किसकी होगी? पोटेशियम सबसे ज्यादा ज्यादा लिथियम लिथियम की हाईएस्ट होगी इन ग्रुप 1, और सबसे कम किसकी होगी? पोटेशियम की होगी। ये बात क्लियर है सबको? Yes. यस तो अब इसके बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे कम होगा। डी गुड, डी में सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि लिथियम की पोटेशियम से ज्यादा है और ब्रोमीन की फ्लोरीन से ज्यादा कम है, तो जब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो इन दोनों का डिफरेंस सबसे कम होगा। ये बात क्लियर है? Yes. अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लें। So D is the correct answer. Now question number 6. VSEPR valence shell electron pair repulsion theory should be used to answer this question. Hydrazine has the following structure. Okay. What is the predicted bond angle of Xg? कौन बता रहा है? नाइट्रोजन जी 107 गुड। जब नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, हमें पता है नाइट्रोजन किस ग्रुप में होता है? ग्रुप 5 में होता है। ग्रुप 5 में होने का मतलब है कि इसके पास एक लोन पेयर भी होगा। तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम ऐसा हो जिसके पास 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, तो उस केस में बॉन्ड एंगल 107 डिग्रीज बनता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. Question number 7. The question is about Buckminster fullerene, graphite, iodine, and diamond. How many of these substances have a simple molecular structure? जी, इनमें से किस किस का simple molecular structure है? iodine and C60 दोबारा आप बोलें। ग्रेफाइट इज सिंपल सी जाइंट स्ट्रक्चर होता है, डायमंड का भी जाइंट होता है, आयोडीन I2 होता है और बकमिस्टर फुलेरिन C60 होता है। इसमें जो 60 एटम्स हैं और इसमें 2 एटम्स हैं, तो इन दोनों का जाइंट सिंपल स्ट्रक्चर होगा। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। गुड। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
G. Yes. Yes. Okay. Now question number 8. A student reacts 1 mole of magnesium powder in a sealed 0.03 meter cube container of oxygen at a pressure of 2 exponent 5 pascals and a temperature of 600 Kelvin. The magnesium reacts completely to form magnesium oxide. Which percentage of oxygen will be used up? G. ऑक्सीजन कितने परसेंट यूज हुआ ये आइडेंटिफाई करना है। तो हम ऑक्सीजन के मोल्स निकाल सकते हैं जनरल गैस इक्वेशन से। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? PV. RT ओवर PV, PV इज इक्वल्स टू nRT करें तो R की वैल्यू क्या है? 8.31। T हमें उन्होंने दिया हुआ है 600 केल्विन। प्रेशर उन्होंने हमें पास्कल्स में ही दिया हुआ है 2 एक्सपोनेंट 5 और उसको मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम से 0.030 मीटर क्यूब। बताइए आंसर क्या आ रहा है? 0.831. 0.831 मोल्स। ये बात क्लियर है सबको? और ये मोल्स किसके हैं? ऑक्सीजन क्या है? जी ये क्लियर है सबको? Yes. अच्छा, अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की इक्वेशन बनाएं तो फॉर्मूला क्या बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का? MgO। और उन्होंने जैसे कि बताया 1 मोल यूज हुआ है, तो 1 मोल अगर मैग्नीशियम यूज हुआ है तो ऑक्सीजन कितने मोल यूज होगा? हाफ मोल यूज होगा। सर इधर PV अपॉन RT नहीं होगा? हाँ मैंने शायद उल्टा लिख दिया। PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, सॉरी। आपने जो आंसर निकाला था वो किस तरह निकाला था? PV इज इक्वल्स टू nRT। तो अच्छा, PV और RT, तो P इज प्रेशर 2 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 0.030 and divided by 8.31 into 600। जी अब बताइए कितने मोल्स आ रहे हैं? 1.2. 1.2 मोल्स आ गए ऑक्सीजन के। अच्छा, अगर क्वेश्चन में देखें तो इक्वेशन जो हमने बैलेंस बनाई है उसमें 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कितने मोल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है? जी 1 मोल मैग्नीशियम कितने मोल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है? हाफ। हाफ मोल। और उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स कंप्लीटली। तो इसका मतलब है कि अगर मैग्नीशियम ने कंप्लीट रिएक्शन किया है तो ऑक्सीजन के जो मोल यूज्ड हुए हैं वो कितने हैं? 0.5 यूज हुए हैं। ये बात क्लियर? Yes. Yes. तो टोटल मोल्स हमारे पास कितने थे ऑक्सीजन के? 1.2। यूज कितने हुए? 0.5 multiply by 100, so we will get the percent oxygen used। जी 42 आ रहा है। Yes. Yes. So C is our correct answer। ये क्लियर है सबको? Yes. Question number 9। Which equation represents an enthalpy change that is the average bond energy of a CH bond in methane? अच्छा, bond energy, first tell me bond energy is used for a bond making or bond making? Bond breaking or bond making? Bond making. No, bond breaking।
Bond making is always exothermic, and when we define bond energy, we say it is the amount of energy needed to break 1 mole of a specific covalent bond. So it is relevant to bond breaking. और अगर बॉन्ड ब्रेकिंग से रेलेवेंट है तो मैं ए को डायरेक्टली क्रॉस कर दूंगा, क्योंकि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर CH4 बना रहे हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। ये बात क्लियर है? यस अच्छा, उन्होंने आपसे क्या बोला है कि मीथेन में हमें CH बॉन्ड की एवरेज बॉन्ड एनर्जी बतानी है, राइट? यस अगर हम C, D और B को देखें तो तीनों में हमें क्या फर्क नजर आ रहा है कि बेसिकली C जो है 4 CH बॉन्ड्स को ब्रेकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि CH4 से C और 4 हाइड्रोजन बन रहे हैं, तो इसका मतलब है CH के 4 बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, राइट? यस तो इसलिए मैं C को रॉन्ग कर दूंगा। अच्छा, अगर D में देखें तो D में पूरा मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं हुआ, जस्ट एक ही बॉन्ड ब्रेक हुआ है और बाकी CH3 इंटैक्ट है, राइट? यस तो इसलिए D भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम B को देखें तो BH में CH4 को 1/4 लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि B और C में क्या डिफरेंस है? B को मैं ये कह सकता हूं कि CH टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय 4, तो मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ CH बचेगा। यस सो इट मींस B इज माय करेक्ट आंसर, क्योंकि वो एवरेज CH बॉन्ड की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है एक मीथेन मॉलिक्यूल में। D एवरेज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, चारों नहीं हो रहे थे। और C में चारों बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और वो चारों की बॉन्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उसमें उन्होंने जो है 1 मोल ही मीथेन यूज किया है। ये बात क्लियर है? यस ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड हम कल स्टार्ट करें। यस यस, सालेहा एंड सानिया, यस चलें, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। सर जी, सर आपसे पूछना था, जो आपने AS के नोट्स भेजे थे, वो हम्म। सारे नोट्स हैं, लाइक फुल सिलेबस को कवर करते हैं? हाँ, आई थिंक ऑलमोस्ट वो सभी चीजों को कवर करते हैं। सही है। तो अगर वही एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ के चला जाए तो वो उसमें कुछ मिस तो नहीं है? आई थिंक शायद मोल्स अगर नहीं है तो नहीं होगा, क्योंकि उसकी तो सारी कैलकुलेशंस और प्रैक्टिस होती है। ओके। और बाकी सारे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और जी फिजिकल? बिल्कुल, बाकी सब कुछ है। ओके, थैंक यू। ओके, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज। सर आप फर्दर और कितने पेपर करवाएंगे, किस ईयर तक हो सकता है? देखें